हम यहाँ छोटे से मीटअप के लिए इकट्ठा हुए हैं। मैं पहले मेरे को काफ़ी लोग यहाँ पे जानते हैं, 2-3 लोग हैं जो नए हैं। मैं मयंक बिसेन, मैं पिछले 20-22 साल से स्टॉक मार्केट में हूँ और मेरा फुल टाइम कैरियर ट्रेडिंग ही है। ट्रेडिंग में फुल टाइम ट्रेडिंग में 2008 से कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट 14 साल 15 साल 14 साल हो गए। मेरी खुद की ट्रेडिंग की अपनी 50 लोगों की टीम है। मैं खुद डिस्कशनरी ट्रेडिंग करता हूँ और ट्रेंड फॉलोइंग करता हूँ, यहाँ सभी लोग जानते हैं मेरे को। और मैं डिस्क्रिशनरी ऑप्शन के बिल्कुल अगेंस्ट में हूँ, हमेशा अगेंस्ट बोलता हूँ और न किसी को सलाह देता हूँ काम करने के लिए, क्योंकि इससे कभी पैसा बाज़ार में बनता नहीं है, सिर्फ लॉस ही होता है और कुछ नहीं होता है। सो हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं मंथली और बाई मंथली हम लोग मीटअप करते रहते हैं। अभी छुट्टियाँ थी इसलिए कम लोग आए ना, 25-30 लोग आ जाते हैं। तो हम पहले इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं, एक बार सब कुछ लोग नए भी हैं तो इंट्रो हो जाए। लेट्स स्टार्ट विथ My name is Devashish Sharma and I have 8 years of IT experience. I've been working as a senior software developer. Since May 2021, I've been a full-time trader. Okay. So this is my short introduction. Hi everyone, good morning. I'm Pradeep. I'm based out of Gurgaon and I'm a CA by profession and I'm working in PwC as an audit manager. And I opened my first Demat account in 2013, so that was the first time I was associated to market. And I used to do option trading, but I quit that in 2022 because of huge losses I incurred in the May month. So I was an option writer till then, but as of now I'm doing investing and I have been rewarded very heavily till now in investing. So it had been a good experience being associated with Mayank sir. Hello everyone, my name is Raj Narayan and I was working with MNC company in WNS Gurgaon and I have been part of in trading community for the last 4 to 5 years. It means that I'm investing my money for the 4 to 5 years and since that trying to learn in trading. I'm Srinivasan. I'm working as an IT professional. I'm investing in mutual fund stock from 96, 97. I had a good profit in the last 25 years. 2015, okay, then I got a algo trading bug because I'm from software background. I tried everything possible under the world, but at the end of the day, I hardly able to get what SEBI said is perfectly right, not able to make FD return. But at least I have a capital. Only thing I can proudly say I have a capital. Still I am in the market. Thank you. सभी को नमस्कार। मेरा नाम अरुण कुमार है और मैं सहारनपुर से हूँ और मैं भी ट्रेडिंग सीख रहा हूँ और अपना काम कर रहा हूँ। Hi all, myself Hastimul Suthar. I'm in market since 2009, as sir say, but I'm as an IT professional to manage all softwares in the trading domain with the multiple like brokings and HFT companies. But I'm always trying to explore the new strategies for myself. So that's why I'm coming here to learn. Hello everyone, I'm Dr. G. R. Sharma. I'm retired director of health services and doing this part-time job of this share market under the guidance of Mr. Khan. Okay. Everyone, good morning. मेरा नाम शिवानी है, डॉक्टर जी आर शर्मा की असिस्टेंट हूँ. Okay. Good morning, myself Karan Jain. I am doing myself trading and running a wealth management firm. Okay, very good. So सभी लोग यहाँ मोस्ट ऑफ द पीपल आर एक्सपीरियंस्ड. दीपक का इंट्रोडक्शन दे दूँ, ये पिछले 10-12 साल से ट्रेडिंग में है, ये शर्माता नहीं बताता है और अच्छा पैसा बना रहा है ये मार्केट से. पहले भी ऑप्शन ट्रेडिंग करता था, आजकल बंद कर दिए हो, नहीं बंद कर दिए हो हैं? अभी भी कर रहे हो? ट्रेंड फॉलोइंग में आया नहीं है अभी? आ जाओ जल्दी से, तुमको समझाता हूँ, समझ नहीं आती बात. सो आज हम जो डिस्कस करेंगे बेसिकली बिल्कुल पिछले टॉपिक से बिल्कुल अलग हट के थोड़ा हम साइकोलॉजिकल एनालिसिस, जो साइकोलॉजिकल बैरियर्स होता है इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स के, उस पर डिस्कस करेंगे. फिर हम डिस्कस करेंगे अच्छे स्टॉक्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं बड़े ट्रेंड के लिए. जैसे कि प्रतीक है, ये इन्वेस्टिंग कर रहे हैं. अभी चूंकि मीट कैप स्मॉल कैप में रैली थी इसलिए उन्होंने पैसा बनाया. 2017 में भी इस तरह से रैली आई थी, लेकिन फिर ये रैली फिजल आउट हो जाती, फिर 4-5 साल में रैली नहीं आती बाजार में, ठीक है. बट इसके बावजूद भी हम कैसे ट्रेंड फॉलोइंग से बड़ा पैसा कैसे बनाते हैं उसके बारे में हम जनरल डिस्कशन करेंगे, ठीक है.
उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे जो कि बिल्कुल न्यू टॉपिक है, शायद आपको यूट्यूब वगैरह पे शायद मिले, कोई हो बताने वाला, नहीं बताने वाला मेरे को पता। टाइम साइकिल की बात करेंगे हम कि किस किस टाइम साइकिल का फेज क्या होता है, कब कब बड़ी मंदी आती है, कब कब बड़ी तेजी आती है बाजार में, उसका साइकिल क्या होता है। उसे एक फ्रेमवर्क माइंड में रहता है कि अपने पोर्टफोलियो को कब हम रिड्यूस करना है, कब हमको बढ़ाना है, कब हम सेक्टर्स, किस सेक्टर्स में एंट्री करना है, किस सेक्टर में एंट्री नहीं करना है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, जो कि मैं बहुत छोटा सा पीपीटी बना के आया हूँ टाइम साइकिल के बारे में। टाइम साइकिल इज़ वेरी ह्यूज स्टडी, बहुत बड़ी स्टडी है अपने आप में टाइम साइकिल। और जिसका टाइम साइकिल पे कमांड हो गया वो फिर समझ लो कि वो कितना पैसा बनाएगा, कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली सारा गेम टाइम साइकिल का ही है। तो टाइम साइकिल के बारे में हम काफ़ी छोटा लेकिन कॉन्साइज लेकिन काफ़ी डिटेल स्टडी लेकर आया हूँ, तो उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। बेसिकली सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है ट्रेडिंग में कि साइकोलॉजी इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग। मेरा अपना मानना है कि 80 to 90% पैसा सिर्फ साइकोलॉजी से ही बनता है। स्ट्रेटजी का रोल 10 से 15% 20% रहता है, क्योंकि स्ट्रेटजी आपको एंट्री एग्जिट बताती है, लेकिन कितनी पोजीशन साइज लेनी है, कब काटना है, कब नहीं काटना है, कब क्वांटिटी को डबल करना है, कब पिरामिडिंग करनी है, कब कब पोजीशन को और आगे तक इन्हेंस करके ले जाना है, वो सब आपके माइंडसेट पे डिपेंड करता है। सो माइंडसेट का अपना एक यहाँ इंडिया में तो इस पर कोई डिस्कशन नहीं करता है, क्योंकि डिस्कशन इसलिए करने वाले लोग नहीं है क्योंकि स्टूडेंट नहीं है। स्टूडेंट को क्या चाहिए, लॉलीपॉप चाहिए, आज कोई स्ट्रेटजी मिल जाए कल वो काम करने लगे। ऐसा कुछ नहीं होता बाजार में। बाजार एक प्रोसेस के थ्रू चलता है, उस प्रोसेस को जो फॉलो करता है उसका पैसा बनता है, जो प्रोसेस को फॉलो नहीं करता उसका पैसा नहीं बनता है, कोई भी हो। और इस बाजार में कंसिस्टेंट बेसिस पे दुनिया में किसी भी ट्रेडर इन्वेस्टर का पैसा नहीं बनता है, मेरा भी नहीं बनता, वो आपका भी नहीं बनता, और आगे भी नहीं बनेगा, फिर बनेगा। सो बाजार में टिके रहना सबसे इम्पॉर्टेंट है। जैसे मैं अभी बता रहा था कि क्रिकेट मैच है, अगर आप फील्ड पे ग्राउंड पे टिके हो तो रन तो नो वाइड से भी बन जाएगा, अगर बल्ले से नहीं बनेगा, बट इम्पॉर्टेंट इज टू स्टे ऑन द पिच। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, पोजीशन साइजिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है। और मैं ऑप्शन में यूजुअली लोगों को मना करता हूँ ट्रेड करने के लिए। ऑप्शन एक हेजिंग टूल है, दिस इज नॉट ट्रेडिंग टूल। ये डिज़ाइन किया गया है इंडस्ट्री द्वारा, बिजनेसमैन के द्वारा, कि कैसे हमको ब्रोकरेज जनरेट करनी है, कैसे सरकार के पास खजाने में पैसा ज़्यादा जाए, उसके लिए, ठीक है, अपने लिए नहीं है। ब्लैक-शॉल जो इन्होंने बनाया था ऑप्शन ना, वो खुद दुनिया से चले गए ऑप्शन ट्रेड करते करते, ठीक है। तो ऑप्शन में पहले इसका मिथ हम तोड़ते हैं। देखो ऑप्शन में पैसा बना कौन रहा है, अगर हम गंवा रहे हैं तो कोई ना कोई पैसा तो बना रहा होगा ना। ये तो जीरो सम गेम है, अगर मेरे जेब से जा रहा है तो किसी की जेब में जा रहा होगा, मेरे जेब से अगर मेरा नुकसान हो रहा है तो किसी प्रॉफिट हो रहा है। जो प्रॉफिट हो रहा है वो बेसिकली जो बड़ी क्वांट फर्म है, जैसे आपने बताया, जो बड़ी क्वांट फर्म है जो थाउजेंड करोड़ रुपीस, मिलियंस में, मल्टी मिलियंस, ये उनके बिलियंस में मैनेज करनी पैसा, ये उसके छोटी मछलियां जो ना 2 लाख 4 लाख रुपए ले आकर जो ऑप्शन में काम कर रही है ना, ये इनके लिए वो क्लाइंट हैं एक्चुअली। तो दे आर मेकिंग, मैं गुड़गांव में कई कंपनियों को जानता हूँ जिन्होंने 400 करोड़ रुपये सिर्फ इंसेंटिव बोनस अपने एम्प्लॉय को बांटी है। ये मेरा कहना नहीं, इकोनॉमिक टाइम्स में प्रॉपर तरीके से आर्टिकल आया हुआ था। वो पैसा किसका है, वो पैसा रिटेलर्स का है, जिनको 5 लाख से 5 करोड़ बनाना है, वो भी 1 साल के अंदर। तो वो चीज़ें हैं कि अगर रिटेलर्स को या एचएनआई को पैसा बनाना है, सिंपल, अगर बाजार में 10 साल 15 साल के लिए काम करना, 20 साल के लिए काम करना है, उनके नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी अगर बनाना है, तो ओनली वन वे टू मेक मनी मेरे हिसाब से, जो मैंने 20-22 साल 25 साल में देखा है। और दिल्ली का कोई ऐसा स्टॉक ब्रोकर नहीं होगा जिसका पोर्टफोलियो ठीक ठाक हो, जो मुझे ना जानता हो पर्सनली। अब तो मैं इधर 5-7-8 सालों से कहीं आना जाना बंद कर दिया हूँ, लेकिन किसके यहाँ भिंडी की सब्जी बनी है, किसके यहाँ लौकी की सब्जी बनी है, वो मेरे को सब पता रहता था। अब मैंने बंद कर दिया है। तो जितने भी 1000, 2000, 5000 करोड़ मैनेज कर रहे हैं दिल्ली में प्रोप्राइटरी ब्रोकर, ऐसा कोई भी नहीं है जो मुझे ना जानता हूँ पर्सनली। ऑल ऑफ देम मेकिंग मनी थ्रू आर्बिट्राज टाइप ऑफ सिस्टम, ठीक है, जो 2% 2.5% के लिए काम करते हैं। अगर ऑप्शन में आपके पास बिजनेस मॉडल है, जैसे भैया ने बोला कि ये सॉफ्टवेयर बनाते हैं और आईटी कंपनियों के लिए, ट्रेडिंग कंपनियों के लिए, अगर ये बिजनेस मॉडल के थ्रू काम कर रहे हैं, 2% 2.5% के लिए काम करें, इट्स वेरी गुड, इट्स सक्सेसफुल। बट जैसे ही आप उससे मिलियनेयर, मल्टी मिलियनेयर बनने की कोशिश किए छोटे कैपिटल से, आपका सारा पैसा डूब जाएगा। सो एक ही फार्मूला है उसका पैसा बनाने को, है ट्रेंड फॉलोइंग। अच्छे क्वालिटी के स्टॉक फंडामेंटली आप निकाल के रखो, प्राइस वाइज वो करेक्ट होता है। कभी कभी 1-2 क्वार्टर अर्निंग अच्छी नहीं आती तो करेक्ट होगा, स्टॉक्स अर्निंग का इम्पैक्ट करेगा, उसके बाद वहाँ पे एक्यूमुलेट करेगा। एक्यूमुलेट करने के बाद जैसे ही ऊपर जाने की कोशिश करता है, आप वहाँ पे भरो उस माल को और राइड करने दो। और ये चीज़ें हमेशा मिलती रहेंगी। साल में
अगर आप 40 से 50 ट्रेड करते हो, आप समझ लो कि आप दुनिया के सबसे बड़े ट्रेडर हो, आप मान के चलो। और 400 से 500 ट्रेड करते हो, समझ लो आपका सब कुछ डूबने वाला है। ये गारंटेड, लिख लो, अपने एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ। सो ट्रेड लेस बट क्वालिटी। जो सबसे ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं ट्रेडिंग में, वो है साइकोलॉजिकल चैलेंज। उसको दूर करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं। बाहर अब तो डॉक्टर वेनथॉर्प मर गए, वो उनका सुपर ट्रेडर प्रोग्राम 3 साल का 1 करोड़ 20 लाख रुपए लेते हैं, और कोई चार्ट नहीं पढ़ाता है, कोई ऑप्शन नहीं पढ़ाता था। अब तो बंद हो, अब तो मर गया वो बंदा। 1 करोड़ 20 लाख रुपए सुपर ट्रेडर प्रोग्राम के लिए लेता है, वो 3 साल का उसका कोर्स था। उसके पहले उसके कम से कम 70 60 50 से 60 हज़ार डॉलर के प्राइमरी कोर्सेज से पहले उसको करो, उसके बाद इस कोर्स को करोगे। और नथिंग स्ट्रेटजी, नथिंग ऑप्शंस, नथिंग चार्ट, ओनली माइंडसेट। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, जो न यूट्यूबर्स बताते हैं न कोई बताता, सबसे इम्पोर्टेंट है माइंडसेट। फिर आता आपका चार्ट्स। चार्ट्स पे अगर आप डेली और वीकली चार्ट्स पे काम करते हो, आपसे अच्छा कोई नहीं। और बड़ा पैसा जो बनेगा स्टॉक्स में बनेगा। इंडेक्स में अगर आप प्ले करते हो तो प्ले ओनली इन इंट्राडे, डोंट कैरी ओवर द पोजीशंस। क्योंकि पोजीशन, अगर आप पोजिशनल ट्रेड करना चाहोगे तो बहुत कम मिलेगा। 41 44 45 हज़ार बैंक निफ्टी आया था, 47 हज़ार हो गया। तो 44 45 हज़ार आने में आपको 4 महीने लगे, फिर 47 हज़ार जाने में 3 महीने लगे, 4 महीने लगे। तो बहुत कम ट्रेड मिलता है इंडेक्स में। तो प्ले इंडेक्स इन इंट्राडे, बट इन स्टॉक्स यू प्ले फॉर द लॉन्ग टर्म। आप HUL है 2250 से 2300 के बीच में देखना, एक्यूमुलेट करता रहेगा। तो स्ट्रेटजी भी चाहे टोल्ड यू 2315 2316 के ऊपर, ये अगर वहाँ सस्टेन कर गया तो 26-27 रुपये जाएगा। हिंदुस्तान लीवर में कोई समस्या नहीं, कोई उदाहरण दे रहा हूँ। पिछले बार मीटअप किया था, तुम भी आए थे, मैंने 3200 रुपये रिलायंस वो बोल रहा था, TCS बोल रहा था, याद है? कितना महीना हुआ? 3 महीना हुआ। रिलायंस 2300 रुपये चला था, उसका भी डिसीजन किया था सर 3200 रुपये हो गया। ऐसे स्टॉक में काम करो ना सर। ऐसा पता नहीं कितने, ब्रिटानिया पड़ा हुआ है, नेस्ले पड़ा हुआ है, अभी ये मरे पड़े हैं। अब नेस्ले बंद होने वाला है, ब्रिटानिया बंद होने वाला है, नहीं होना। ऐसे स्टॉक्स आपको हमेशा मिलते रहेंगे, ऑलवेज। ऐसे स्टॉक्स में आप काम करो जो टॉप क्वालिटी के स्टॉक्स हो। प्राइस ऑफ बजाज फाइनेंस 6200 रुपये आया था, सारा 7200 हो गया 15 दिन के अंदर। तो इस टाइप के स्टॉक्स में काम करो आप। महीने में अगर 3 से 4 ट्रेड अगर आप कर रहे हो, साल में 40 से 50 ट्रेड आप कर रहे हो, आपका पैसा 10 लाख का 1 करोड़ भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और ट्रेडिंग में रिटर्न का बहुत लोग पूछते हैं कि यार क्या रिटर्न उम्मीद करें। ट्रेडिंग में सर कोई रिटर्न की उम्मीद नहीं है। आपका पैसा 100 करोड़ पे भी जीरो हो सकता है, 100 करोड़ का 10,000 करोड़ भी हो सकता है। इसमें कोई गारंटी नहीं कौन कितना पैसा कमाएगा, कोई गारंटी नहीं है। T20 IPL चल रहा है, कौन 10 बॉल पे 100 रन बना देगा, किसी को नहीं पता। तो ट्रेडिंग भी उसी तरीके से, कितना पैसा बन जाएगा कोई लिमिट, जस्ट टू फॉलो द प्रोसेस। और जैसे ही आप रिजल्ट पे जाओगे, आउटकम पे जाओगे, फिर पैसा आपका बनना बंद हो। जब तक आप प्रोसेस को फॉलो करते रहोगे, पैसा आपका बनेगा। जैसे ही आउटकम पे जाओगे, पैसा, जैसे कैलकुलेटर्स कैलकुलेट करते रहोगे, यार अगर हमने 1000 क्वांटिटी लिया, इसके जगह 5000 क्वांटिटी कर दिया होता तो मेरा इतना पैसा बन गया होता, आपका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगा। नाउ द साइकोलॉजी गोइंग टू बी इन ग्रीड फेस। तो ग्रीड एंड फियर टू इंपॉर्टेंट थिंग्स ट्रेडिंग में, इवन कि इन्वेस्टिंग में भी, ट्रेडिंग में भी और इन्वेस्टिंग में भी। ग्रीड एंड फियर को जो कंट्रोल करके चलेगा और स्ट्रेटजी पे प्रॉपर तरीके से जो काम करेगा, पैसा उसका बनेगा, कोई रोक नहीं सकता। अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, वो हमेशा आएंगे, अभी भी, और चाहे मल्टी मिलियनर बन जाओ तब भी वो हमेशा आते रहेंगे। उसको साइडलाइन करना है। और जब भी पोजीशन फंसती है, आपको किसी को फ़ोन नहीं लगाना है कि यार प्रतीक क्या लग रहा है, करण क्या लग रहा है। जैसे क्या लग रहा है आपने सुनना, फ़ोन करना शुरू किया, उसी तरह समझ लीजिए कि आपका पोर्टफोलियो जीरो होने वाला है। अगर आपको लग गया तो पोर्टफोलियो से एग्जिट करो, मारो गोली। सो मेनी टाइम्स ऐसा फील होगा कि जैसे आपने सौदा काटा फिर स्टॉक भाग गया। कई बार ऐसा होगा, बट वो घूंट आपको कड़वा पीना पड़ेगा, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। जो लॉस बुक हो गया हो गया, लुक फॉरवर्ड हेड। रोहित शर्मा अभी तो बेचारा खेल ही रहा है ना, IPL खेल रहा है ना रोहित शर्मा। बेचारे को हार्दिक पांड्या तोड़ाए पड़ा है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, दुनिया भर के रील्स बन रही हैं, खेल रहा है ना वो। तो कड़वे घूंट पीने पड़ते हैं भाई, क्या करोगे। सो कुछ हम PPT बना के लाए हैं और कुछ इस पर हम डिस्कशन करेंगे। कुछ साइकोलॉजी बहुत बड़ा पार्ट है, बहुत बड़ा पार्ट है साइकोलॉजी का। पीछे एक वेबिनार लिया था मैं, आप जो भी अटेंड किया होगा, मेरे पता नहीं, हो सकता किसने कुछ अटेंड किया हो। मैंने न्यूरोप्लास्टिसिटी की बात किया था, है ना, कुछ लोग अटेंड किए थे। न्यूरोप्लास्टिसिटी का बहुत बड़ा रोल है। अब यहाँ पे जितने ट्रेनर हैं इंडिया में, को पता ही नहीं न्यूरोप्लास्टिसिटी होती क्या। बड़े बड़े डॉक्टर्स को नहीं पता क्या होती है, न्यूरॉन्स का क्या रोल है ट्रेडिंग में, ये पता ही नहीं लोगों को, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि ट्रेडिंग से पैसा कमा के कभी भी लग्जरीज को नहीं पालना है। मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस है। आप कितना पैसा कमा लो ट्रेडिंग से,
आपको सर लग्जरीज नहीं पालनी है उससे, है ना। आज आपको 10% 20% का रिटर्न आ रहा, कल आएगा नहीं, अगर नो गारंटी। उस रिटर्न के बेस पे आप दुनिया भर की चीज़ें खरीद लिए फ्यूचर एस्टिमेशन करके, तो यहाँ भी नुकसान होगा, वहाँ भी नुकसान होगा। और ट्रेडिंग से जो भी पैसा आ रहा है आप थोड़ा थोड़ा निकाल करके इन्वेस्टिंग में डालो, म्यूचुअल फंड में डालो, रियल एस्टेट में डालो, जहाँ जहाँ भी आपको समझ में आ रहा है वहाँ थोड़ा थोड़ा पैसा निकालते रहो उससे बीच बीच में। क्योंकि ये ना मैंने बड़े बड़े ट्रेडर्स को देखा, बड़े बड़े ट्रेडर्स को देखा एक दिन में जीरो होते हुए, सिंगल डे जीरो। अभी पिछली बार एक ब्रोकर का मैंने उदाहरण दिया था यहाँ पे, 300 करोड़ पैसा एक दिन में चले गए उसके, सिंगल डे। बाजार से पैसा बनता है 1% आधा % लोग बनाते हैं, वही बनाता है जो टिके रहता है, सिंपल सी बात है। और जहाँ तक इन्वेस्टिंग की बात है, इन्वेस्टिंग में देखो क्या है, इन्वेस्टिंग में जो 3 रुपये वाला स्टॉक 300 रुपये हो जाएगा, या 40 रुपये वाला स्टॉक 4000 हो जाएगा, ये सब काम भाई देखो बड़े जुगाड़ से होते हैं, सिंपल सी बात है, हमारे आपके बस की बात नहीं है, ठीक है। ये सब बॉम्बे बैठे लोग मैनेजमेंट से कनेक्शन, इनसे कनेक्शन, उनसे कनेक्शन बना के स्टॉक्स को ऑपरेट करते हैं, चलाते हैं, ठीक है। फिर दुनिया भर के सेमिनार करेंगे, उसके बारे में बातें करेंगे, फिर आप उस शेयर को खरीदोगे, फिर वो धीरे धीरे डंप करेंगे, वो कहानी अलग है। वो आइडेंटिफिकेशन करना बहुत मुश्किल है। जैसे करण है, सपोज दैट इसने आइडेंटिफाई किया कि सर ये स्टॉक से, ये कंपनी है 40 रुपये की है, और ये मैंने आइडेंटिफाई किया, मेरे पास बॉम्बे से यहाँ से वहाँ से खबर आ रही है, स्टॉक 40 रुपये से 500 रुपये हो जाएगा, ठीक है। अब मैं करंट के नॉलेज पे या करंट के इन्फॉर्मेशन पे कब तक काम करता रहूँगा? तो अब करण को भी नहीं पता, करण को भी किसी थर्ड पार्टी ने बताया है। अब ये गारंटी क्या है कि इसको माल चेपने के लिए वो बता रहा है कि नहीं बता रहा है? सो ये आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है। मिड कैप स्मॉल कैप की रैली 5 साल 7 साल 8 साल में एक बार आती है। जब 2017 में आई थी रैली, जबरदस्त रैली आई थी मिड कैप, उसके बाद 2023 में आई, 2-3 में आई रैली। अब उसके बाद 27 में आएगी कि 28 में आएगी कि 29 में आएगी, नोबडी नोस, ठीक है। तो सबसे बेस्ट तरीका इसका यही है कि टॉप क्वालिटी के स्टॉक जब प्राइस वाइज और टाइम वाइज करेक्ट होते हैं और उसके अपनी अर्निंग उसकी अच्छी स्टार्ट होती है, अपने अपने जो चार्ट्स की जो आपकी मेथडोलॉजी है उसको फॉलो करो, आप जो भी सीखे हो, और उसको ले करके आप छोड़ दो। वही एक तरीका अच्छा पैसा बनाने का, और कोई तरीका नहीं है। अगर आपका पकड़ हो सके सेक्टर रोटेशन में तो बहुत बढ़िया है, वो भी बहुत मुश्किल है। सेक्टर रोटेशन कौन, जब सेक्टर चल जाता तब समझ में आता है यार ये तो सेक्टर मेरा छूट गया, ठीक है ना। लेकिन साइक्लिकल होता है, ठीक है। इस साइकिल को समझने की ज़रूरत है कि अभी ऑटो चल गया बहुत ज़बरदस्त तरीके से, ठीक है। PSU बैंक बहुत चल गए, ठीक है। अभी FMCG नहीं चल रहा है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं चला FMCG। तो नाउ वी हैव टू फोकस ऑन FMCG, कि वहाँ से निकलो। IT भी बहुत चल गया, ठीक है, और PSU भी बहुत चल गए, ऑटो भी बहुत चल गया, फार्मा नहीं चल रहा है, FMCG नहीं चल रहा है। तो वहाँ के जो फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स हैं उसको फंडामेंटल एनालिसिस करके निकालो, फिर अपने पोर्टफोलियो पर लगाओ, फिर उसकी चार्ट की स्टडी करो। चार्ट की स्टडी करने के बाद जब आप ब्रेकआउट लेता है तब आप वहाँ पे धीरे धीरे पोजीशन बनाओ। और ऑल पोजीशन इन सिंगल बास्केट कभी नहीं करना है। और ये रूल है कि कुछ पोजीशन, जैसे आपका 1 करोड़ का पोर्टफोलियो है, से एग्जांपल दे रहा हूँ, तो कभी भी पूरे पैसे को बाजार, मतलब 10 से 15% 20% आप हमेशा अपने पॉकेट में रखो, ऑलवेज फॉर द गुड अपॉर्चुनिटीज, ऑलवेज रखो। कैश इज किंग, वॉरेन बफेट भी बोलता है कैश इज किंग, ठीक है। ऑलवेज अपने स्टॉक में रखो। अगर आपका 1 करोड़ रुपए है तो 20 लाख रुपए कुछ नहीं मिल रहा, आपको इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा, फिर भी अपने पोर्टफोलियो में रखो। तो ये मेथड होता है ठीक ठाक काम करने का, ठीक ठाक पैसा बनाने का। और जब आपके पास पैसा ठीक ठाक हो जाए और आपको लगे थोड़ा एग्रेसिव ट्रेडिंग करना है, मुझे थोड़ा सा अब गियर थोड़ा सा चेंज करना है, देन आई पर्सनली सजेस्ट यू कि आप ना अपने से ट्रेड करना बंद कर दो। इफ योर पोर्टफोलियो साइज इज गुड, यू कैन अफोर्ड द डीलर्स, टर्मिनल ऑपरेटर 50,000 20,000 रुपीज पर मंथ, तो सबसे बेस्ट तरीका यह होता है कि आप अपने से सौदे पंच करना बंद कर दो। 50% साइकोलॉजी आपकी वहीं खत्म हो जाती है, 50% साइकोलॉजी आपकी वहीं खत्म हो गई जहां पे आपने खुद से सौदा पंच करना बंद कर दिया। ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो फुल टाइम ट्रेडर, जिनके पास पोर्टफोलियो साइज ठीक है, जो 20,000 25,000 रुपये महीने एडिशनल टू ब्रोकरेज एंड अदर थिंग्स वो एफोर्ड कर सकते हैं। तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। मैं पूरी लाइफ में कभी भी खुद सौदा नहीं डाला, पूरी लाइफ में, जब से मैं फुल टाइम ट्रेडिंग में आया आज तक एक सौदा नहीं डाला। लॉस हो प्रॉफिट हो कुछ भी हो, मैं अपने हाथ से कोई सौदा नहीं डालता। आई नेवर पंच माई ऑर्डर थ्रू माई हैंड, कभी नहीं। अब मुझे पता भी नहीं है कि F1 से सौदा पड़ता है या F2 से सौदा पड़ता है, जानता भी नहीं। और मेरी खुद की 50 लोगों की ट्रेडिंग प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग टीम है, 50 से 60 लोगों की ऑप्शंस की। 15-14 साल हो गए मुझे, मेरा पार्टनर देखता है उस काम को, मैं वहाँ उसको चिमटे से भी नहीं छूता हूँ, जाता भी नहीं वहाँ पे।
क्योंकि वो वहां पे जाने का मतलब है फिर वहां पे दिमाग लगाओ, फिर अपना दिमाग खराब करो। तो इसलिए एक चीज पकड़ो और उस चीज को पकड़ करके बैठे रहो, है ना। स्ट्रेटजी कभी खराब नहीं होती है, टाइम वाइज उसमें फिजल आउट होते रहते हैं, ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत पड़ती है ना। तो उस चीज को फॉलो करना है। दूसरी चीज की मैं सभी ट्रेडर को बोलता हूँ जितने भी ट्रेडिंग लाइन में आते हैं कि मार्केट विजार्ड की ना सारी सीरीज पढ़ो आप, ऑल द सीरीज ऑफ मार्केट विजार्ड। देखो कि ट्रेडर $10,000 से $20,000 से $10 लाख 20 लाख डॉलर कैसे बनाए हैं, क्या मेथोडोलॉजी है, क्या साइकोलॉजी है। सो आई पर्सनली सजेस्ट टू रीड ऑल मार्केट विजार्ड बुक, सारी मार्केट विजार्ड्स की बुक पढ़ो आप, तब आपको पता चलेगा कि रियल पैसा कैसे बनता है बाजार में। जो दिखाया जा रहा है यूट्यूब पे और रील्स पे उससे बनता है, या जो रियल में जिन्होंने पैसा बनाया है मल्टी मिलियंस, उनका प्रोसेस क्या है, जो दिखाया जा रहा है वो प्रोसेस क्या है। तो ये तो हो गया जनरल डिस्कशन, और हम चलते हैं टॉपिक पे। बहुत छोटा सा प्रेजेंटेशन है साइकोलॉजी का, मेरा पूरा कोर्स है लगभग 400-500 पेज का ट्रेडिंग साइकोलॉजी का, जो कि मैंने अपने मेन कोर्स में इंक्लूड करके रखा हुआ है। और ये तो छोटा सा प्रेजेंटेशन है। साइकोलॉजी का इतना बड़ा रोल है, इतना बड़ा रोल है, इतना बड़ा रोल है कि कोई मतलब ना कि बिजनेस डॉक्टर वेन थार के कोर्स है बिजनेस प्लानिंग फॉर ट्रेडर्स, उस कोर्स का वो लेता है $3500। कितना लेता है? $3500। कैलकुलेट करो 83 से कितना हो गया, लगभग 3 लाख रुपए करीब। ठीक है, सिर्फ बिजनेस प्लानिंग फॉर ट्रेडर्स पढ़ाता है वो। मुश्किल से मेरे हिसाब से 8 या 10 घंटे का कोर्स होगा, वीडियो कोर्स है। ठीक है, $3500 लेता है सिर्फ ये बताने के लिए कि ट्रेडिंग कब करनी चाहिए, कब नहीं करनी चाहिए, और उसका बिजनेस प्लानिंग कैसे करना है, सिर्फ इसके लिए। तो जो ट्रेडर ये समझता है कि हम सिर्फ चार्ट्स पे पकड़ बना लिए या ऑप्शंस में पकड़ बना लिए, स्ट्रेटजी पकड़ बना लिए, मेरा पैसा बन जाएगा, कभी नहीं बनेगा। जब तक कि उसकी साइकोलॉजी या माइंडसेट जो है ठीक नहीं होगा, कभी बड़ा पैसा नहीं बनेगा, नेवर। सो हम पीपीटी पे चलते हैं और डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, इमोशनल स्ट्रेस, हाई इमोशनल स्ट्रेस। हाई इमोशनल स्ट्रेस कब होता है? सौदे गलत चले गए, फैमिली प्रेशर, कई तरीके के स्ट्रेस होते हैं, स्पेशली ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब सौदे गलत चले जाते हैं वो कटते नहीं हो, काट नहीं पाता आदमी। इसलिए बोलता हूँ जब आपका पोर्टफोलियो साइज ठीक ठाक हो जाए ना, तो आप अपने सौदा, मतलब मैं यहाँ पे जो डिस्कशन कर रहा हूँ एक बिजनेस, ट्रेडिंग एज ए बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कशन करने आया हूँ हम यहाँ पे, ट्रेडिंग एज ए इंडिविजुअल नहीं। ठीक है ना, हम इसको एज ए बिजनेस कैसे बनाए ट्रेडिंग को, जो बड़ा प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग हाउस, कैसे लोग बड़े ट्रेडर काम करते हैं। तो उस कंडीशन में क्या है कि आप जैसे ही अपने से ट्रेड करना बंद करोगे ना, तो डीलर को बोल के चले जाओगे ना, भैया इस रेट पे काट देना, वो काट देगा। उसको क्या, वो बकरे को हलाल कर देगा, उसको कोई संकोच नहीं है। ठीक है ना, आप बैठोगे तो काटे कि नहीं काटे, काटे कि नहीं, उसमें रह जाओगे। तो दूसरा, फिजिकल इलनेस एंड फटीग। इवन कि डॉक्टर वेन थार बोलते हैं कि अगर आपके पास कोई पेट है, पेट, ठीक है ना, अगर कोई डॉगी रखा है, कोई कैट, किसी का पैरेट है, वो भी बीमार है ना, उसको भी परेशानी है ना, तो उस दिन ट्रेड नहीं करना आपको। आपका छोटा बच्चा है, रात में यूजुअली पेरेंट्स सो नहीं पाते हैं, तो आपको ट्रेडिंग बहुत कम करनी है जब तक कि प्रॉपर तरीके से 2 साल 3 साल का नहीं हो जाता, उसको नहीं लगता है। ठीक है, किसी तरीके से फैमिली में प्रॉब्लम है, आप जा रहे हो गाड़ी से, कहीं गाड़ी में रेस हो गया और तू मैं हो गई, आपको ट्रेड नहीं करना है, आपको ट्रेड नहीं करना। हालांकि वो मैं भी 15-20% 25% ही फॉलो करता हूँ, क्योंकि मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ, लेकिन फॉलो करता हूँ। और जो भी नुकसान हो, जो भी प्रॉफिट हो, वो सिर्फ मेरे अंदर आना चाहिए, किसी दुनिया को पता नहीं, मेरे फैमिली को किसी को नहीं पता, क्योंकि मेरा प्रोफेशन ही यही है। जब 1 करोड़ 2 करोड़ रुपये लगता है, तब वाइफ को लगता है कि आज कुछ ज़्यादा लग गया पैसा। 25-50 लाख रुपए तो हैबिचुअल हो गई है। ठीक है, तो जितने भी लॉस है, जितने भी प्रॉफिट है, वो अपने पास रखो। और सेटबैक से उभरने का एक ही तरीका है कि आप सिर्फ अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छी बुक्स पढ़ो, अच्छे वीडियोस देखो। सिर्फ ये वही एक मेथड है जिससे आप दोबारा उभर सकते हो। 2-2 साल तक मैंने ट्रेडिंग बंद कर रखी है, 3-3 साल। पीटर ब्रेंड्स 10 साल ट्रेडिंग बंद कर रखा था। 10 ईयर्स, 90 से लेकर के 2003 में स्टार्ट किया वो दोबारा ट्रेडिंग। 10 साल ट्रेडिंग बंद कर रखा था। ट्रेडिंग में ऐसे सेटबैक्स लगेगा करे सब कुछ खत्म हो गया, अब तो कुछ होगा ही नहीं। लेकिन यही एक ऐसा मेथड है कि फिर दोबारा उस लेवल पे आपको खड़ा कर सकता है, दूसरा कोई नहीं है। मैंने तमाम ऐसे फ्रेंड्स को देखे हैं जो कि करोड़ों रुपए कमाए, बैंकरप्ट हो गए, लेकिन फिर दोबारा उससे ज़्यादा 3 गुना 4 गुना ज़्यादा पैसा कमाए। बट मैं कभी ये सजेशन नहीं देता, इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपके पास इतना पैसा हो
कि लॉसेस लगने के बाद आप पोजीशन पूरी जीरो कर दो, कम से कम इतना पैसा आपके पास हो कि आप दोबारा स्टैंड कर सको। जब आपके पास कैपिटल ही नहीं रहेगा तो आप स्टैंड कहाँ से करोगे? कभी भी लोन लेकर के, कभी दोस्त का पैसा लेकर के, कभी रिलेटिव्स का पैसा लेकर के बाजार में नहीं लगाना है। ये सब मैं अपना लाइफ एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ये सब मैंने किया हुआ है। कभी नहीं लगाना है। जितना मेरा पोर्टफोलियो, मुझे उतने पे ही काम करना है। जब तक पैसा आते रहता है तब तक सभी कॉफी चाय पिलाएंगे, सभी लंच पे ले जाएंगे, डिनर पे ले जाएंगे। एक सेटबैक्स लगेगा, सब खत्म। तो जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, फिजिकल इलनेस एंड फटीग। कोई बीमारी हो, किसी तरीके के घर में हो, अपनी बीमारी हो, पेट हो, तो हमको ट्रेडिंग नहीं करनी है, या बहुत ही छोटी। अगर आप 10 लॉट से काम कर रहे हो तो 2 लॉट में काम करना, जिससे कि आपके ऊपर स्ट्रेस ना आए। डिस्ट्रैक्शंस, तमाम तरीके के डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, उससे दूर रहना है। प्रिपरेशन, चार्ट की स्टडी प्रतिदिन करनी है। जो भी आपने अपना ट्रेड किया हुआ है ना, वो ट्रेड के, चाहे विनिंग ट्रेड हो या लूजिंग ट्रेड, उसकी डेली एनालिसिस, डेली जर्नल बनाना चाहिए आदमी को। डेली, प्रतिदिन, ईच डे उसकी जर्नलाइजिंग होनी चाहिए, ईच डे। सपोज आप इंट्राडे काम कर रहे हो इंडेक्स में, तो दिन भर में 2 ट्रेड मिला, 3 ट्रेड मिला, आपने कहाँ गलती की? अगर आपको 3 ट्रेड में 2 ट्रेड आपका प्रॉफिट कर रहा है, 1 ट्रेड लॉस कर रहा, तो लॉस वाले में क्या गलती की, आपने प्रॉफिट वाले में क्या सही किया, कहाँ आपसे गलती हुई, वो चीज़ डेली बेसिस पे देखना है। ट्रेडिंग इज जस्ट लाइक ए बिजनेस। जो ट्रेडर इसको धंधा नहीं समझेगा ना, वो कभी पैसा नहीं बना पाएगा। जैसे सारे धंधे में लॉस प्रॉफिट होता है, सारे बिजनेस में लॉस प्रॉफिट होता है, उसी तरह ट्रेडिंग में भी होता है, स्टॉक मार्केट में भी होता है। अभी फिन निफ्टी में मैं अभी था नहीं, मैं फॉर्म पे गया हुआ था अपने। अभी कई लोगों को पैसे लगे हैं मिड कैप निफ्टी में, करोड़ों करोड़ों रुपए लगे हैं। इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम, क्या कर सकते हैं। लेकिन बिजनेस मॉडल को बनाने के लिए और ट्रेडिंग को, इन्वेस्टिंग को बिजनेस मॉडल बनाने के लिए आपको कम से कम प्रतिदिन आधे घंटे बुक्स तो पढ़नी ही पड़ेगी। ट्रेडिंग की, साइकोलॉजी की, माइंडसेट की, बिजनेस की किताबें पढ़ना ही पड़ेगा, उसका दूसरा कोई सोल्यूशन नहीं है। मैं आज लेक्चर दे रहा हूँ, इंस्पायर हो गए, मोटिवेट हो गए, 2 घंटे बाद ये सब गायब हो जाता है, कुछ दिमाग में नहीं रहता है, सब ऑब्सोलीट हो जाता है। सो बुक्स, और 10 बुक्स पढ़ने की जगह एक बुक को आप 10 बार पढ़ो, वो ज़्यादा फायदेमंद है। कुछ मैं बुक्स भी बताऊंगा ट्रेडिंग से रिलेटेड। एक किताब मैं स्टीव की हमेशा रिकमेंड करता हूँ, लिख लीजिए आप लोग, मंगा लीजिएगा उसको, हाई परफॉर्मेंस ट्रेडिंग। बहुत ही अच्छी किताब है। मैं 250 रुपये से रिकमेंड कर रहा हूँ उस बुक को। इतना रिकमेंडेशन किया कि 35 रुपये रेट हो गया, बट ऑनलाइन आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप जाओगे ना गूगल पे तो ऑनलाइन डाउनलोड हो जाएगा वो। तो जिसको हार्ड कॉपी नहीं लेना वो ऑनलाइन डाउनलोड कर सकता है। बहुत ही शानदार किताब है। हाई परफॉर्मेंस ट्रेडर, हाँ, हाई परफॉर्मेंस ट्रेडिंग। अभी दिखा देगा मुकेश, अभी खोल करके ना, गूगल पे खोल के दिखा देगा। इस बुक्स को आप डाउनलोड कर लो, इस बुक को पढ़ो। जब इस बुक को पढ़ो, कम से कम 7 से 8 बार में इस किताब, मेरे पास तो कम से कम नहीं तो 4 से 5 लाख रुपए किताबें पढ़ी होंगी। ठीक है, मैं हर दिन जब भी परेशान रहता हूँ तो मैं बुक्स में ही जाता हूँ। ठीक है, फिर नई एनर्जी वहाँ से आती है, मुझे लगता है कि नहीं, आई कैन डू, आई कैन स्टैंड। तो इस बुक्स में ना, जब इस बुक्स को आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा यार सब कुछ तो मेरे साथ ही हो रहा है, ऐसा है ना। इतनी शानदार किताब लिखा है। और भी बुक्स बताऊंगा मैं। ठीक है, फाइनेंशियल प्रेशर, ओवर कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ फोकस। फाइनेंशियल प्रेशर देखो क्या है ना, कि जैसे प्रतीक ने मेरे से क्वेश्चन किया कि सर आई एम ऑन 30 लाख रुपीस पैकेज, मैं 30 लाख का पैकेज पा रहा हूँ, कितना फंड मेरे पास होना चाहिए कि मैं अपनी जॉब को छोड़ करके ट्रेडिंग में आ जाऊँ। इसका कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, क्योंकि 5 करोड़ रुपये वाला भी जीरो हो जाता है, और 10,000 कमाने वाला भी 10,000 से ट्रेडिंग स्टार्ट करने वाला भी 10 लाख पे पहुँच जाता है। इसका कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर स्किल, टोटली डिपेंड ऑन योर स्किल। इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है। और अगर आपकी टीम नहीं है, लोगों की बहुत बड़ी टीम नहीं है, बहुत बड़ा प्रोप्राइटरी हाउस नहीं है, आप इंडिविजुअल ट्रेडर हो, सोलो ट्रेडर हो, बेटर यह है कि आप साइलेंट हो करके अपना काम करो। किसी से मतलब नहीं रखना है, क्या प्रॉफिट हुआ क्या लॉस हुआ, किसी से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ अपने टर्मिनल पर रखो, टर्मिनल खोलना, टर्मिनल बंद करना है। ना तो किसी से शेयर करना है, ना किसी को बताना है, कभी नहीं। जब मैं स्टॉक मार्केट में, माय फादर इज ए डॉक्टर, तो वो तो पूछा मयंक क्या कर रहा था, कुछ नहीं, वो सट्टेबाजी कर रहा है।
ये सबसे बड़ा मिथ है स्टॉक मार्केट में। अब इधर बीच क्या हुआ ना कि कोरोना काल में जब लोगों ने घर बैठे थे और काफ़ी ट्रेडर्स आ गए, काफ़ी अब तो गांव गांव में भी लोग मैं जब जाता हूं तो भैया वो मोबाइल में पता नहीं क्या खेलते रहता है, देखता हूँ हैं, सभी ऑप्शन लगे हुए हैं 10,000 20,000 50,000 रुपये लगा करके। फिर भी मैं ड्रीम 11 से बेटर ही मानता हूँ यार, कम यहाँ कुछ तो सीख रहे हैं। वहाँ पे क्या मिल रहा है भाई? यहाँ पे सेबी इतनी रिस्ट्रिक्शन लगाती है, वहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है। 28% जीएसटी ले रहा है, वो हम ही से ले रहा है जीएसटी, कौन सा कंपनी अपने घर से दे रही है? लोग खेल रहे हैं। अब क्रिप्टो को बैन कर दिया, 16,000 से 74,000 हो गई। 30% टैक्स ले लेते हैं सबसे। तो इस पे भी तो ले रहे हैं टैक्स, ड्रीम 11 पे भी तो ले रहे हैं। उसमें 30% टैक्स की समस्या नहीं है, उसमें समस्या दूसरी है क्रिप्टो में। चलो आपने चर्चा किया है क्रिप्टो में क्या है, जैसे स्टॉक्स में क्या है ना, जैसे आप ट्रेड कर रहे हो इंडियन स्टॉक में, है ना, एनएससी में आप ट्रेड कर रहे हो, आपको 1 करोड़ का लॉस हो गया, ठीक है, 1 करोड़ का लॉस हो गया, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट ईयर के लिए ना। अब इसमें चाहे रिलायंस में ट्रेड किया हो, निफ्टी में ट्रेड किया हो, टीसीएस में ट्रेड किया हो, सब कंबाइंड मान लिया जाएगा आपका लॉस, एक्यूमुलेटेड लॉस हुआ, और ये लॉस आपका अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अगले साल आपने 2 करोड़ रुपये कमाया तो ये सेटअप हो जाएगा, ठीक है। बट वो क्रिप्टो में क्या कर रखा, उन्होंने बोला कि अगर आपको बिटकॉइन में नुकसान है ना, तो बिटकॉइन का नुकसान ही कैरी फॉरवर्ड होगा, इथेरियम का नहीं होगा। इथेरियम, बिटकॉइन में आपने लॉस किया, सपोज दैट बिटकॉइन में लॉस हो गया आपको, ठीक है, ये लॉस हो गया, ठीक है, और इसमें प्रॉफिट हो गया इथेरियम में, ईटीएच में, ठीक है। अब इंडियन मार्केट में क्या होगा, पूरा कंसोलिडेटेड देते हैं, इसमें क्या होगा, इसका जो प्रॉफिट होगा इसका तो टैक्स ले लेंगे, ठीक है, और ये जो होगा इंडिविजुअल, ये कैरी फॉरवर्ड होगा खाली। और अगर इक्विटी के हिसाब से तो ये दोनों कंबाइंड में लॉस प्रॉफिट जो आता एक्चुअल में होता, वो होता है कैरी फॉरवर्ड। ये सबसे बड़ा लेखना है क्रिप्टो में। 30% सर, आप अगर 1 करोड़ रुपए ट्रेडिंग से कमा रहे हो साल का ना सर, 44% टैक्स दोगे आप इंडिया में। आप क्या समझ रहे हो इंडिविजुअल? इसके बाद में जो टैक्सेस हैं इसमें, अगर आप 1 लाख रुपए कमा रहे हो क्रिप्टो में इंडिया में रहेंगे, हाँ, तो हाँ। आपके पास 30% ही आएगा हाथ में, 60% भाग जाएगा सर। नहीं, 60% कैसे जाएगा सर, और चार्जेस हैं बहुत सारे। वो यहाँ पे भी चार्जेस हैं, इतने तो नहीं है, इतने ही है यहाँ पे। 30% तो उसने स्लैब कर दिया टैक्स का ना, 30% देना है आपको, वो एफएनडो में भी देना है 30% टैक्स। इसने जीएसटी लगा दिया, जीएसटी यहाँ पे भी है। दिक्कत सिर्फ यहाँ है कि लॉसेस जो कैरी फॉरवर्ड होते हैं इक्विटी में, वो कंबाइंड फॉरवर्ड होते हैं, ठीक है। यहाँ पे कंबाइंड फॉरवर्ड नहीं है, जिसका लॉस वही फॉरवर्ड, जिसका प्रॉफिट उसका टैक्स दो। ये सबसे बड़ा लेखना है इंडिया में। खेलने वाले कौन है? मेरा ड्राइवर है। एक दिन मेरा बेटा बोलता है पापा ये ड्रीम 11 खेलता है, मैंने कहा साले मोबाइल तोड़ के रख दूंगा मैं, हैं। अब वो छोटे छोटे लोग हैं रिक्शे चलाने वाले, ये वो सब लगे हुए हैं 50-50 100-100 रुपये डाल करके। सर इतना बड़ा देश है, 140 करोड़ का देश है, उसमें अगर 10 करोड़ लोग भी खेल रहे हैं, सोचो कितना पैसा बन रहा है। कोई गवर्नमेंट कोई रोक, अच्छा गवर्नमेंट की भी गलती है। गवर्नमेंट की क्या गलती है? अब मैंने कोई स्टार्टअप स्टार्ट किया, आपने पैसा लगाया $1 मिलियन, इन्होंने $1 मिलियन लगाया मेरे स्टार्टअप में, उन्होंने $1 मिलियन लगाया। रोकना होता तो पहले रोक देते ना सर। अब तो अरबों रुपए तो इन्वेस्टर्स की भी डूब जाएंगे ना, कल को बंद होगा तो। आप समझो बात को, अरबों रुपए इन्वेस्टर्स ने पैसा लगा रखा है, अरबों खरबों रुपए, वो भी डूब जाएंगे। तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, लेकिन हो रही हैं, तब कोई क्या कर सकता है। अब मार्केटिंग देखो, एडवर्टाइजमेंट देखो, खोलो यूट्यूब खोलो, कोई भी टीवी खोलो, सबको पैसा चाहिए। सचिन तेंदुलकर को छोड़कर ऐसा कोई स्पोर्ट्समैन नहीं है जो ड्रीम 11 का ऐड ना करता हो, एक्सेप्ट सचिन तेंदुलकर। एक स्पोर्ट्समैन नहीं है, सबको पैसा चाहिए। तो उससे तो बेटर ही है नहीं यार, कुछ तो सीखेंगे लोग स्टॉक मार्केट से। खुद नहीं सीखेंगे, बच्चे सीखेंगे, कुछ ना कुछ तो होगा। पैसा उसमें भी जा रहा है, पैसा इसमें भी जाएगा। यहाँ पे ये है यार कि कुछ तो वैल्यू एडिशन होगा, कुछ तो सीखेंगे। उनको कम से कम ये तो समझ में आएगा यार, 2 साल मैंने काम किया, सपोज तो छोटा सा ट्रेडर है, उसने 2 लाख रुपए नुकसान किया 2 साल 2.5 साल में, से एग्जाम्पल दे रहा हूँ। उसको 2 साल बाद तो समझ में आएगा कि नहीं यार इक्विटी में सबसे बढ़िया है, हमें ना ट्रेंड फॉलोइंग करना है इक्विटी में। 2 साल बाद समझ में आएगा कम से कम, ठीक है। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं आना है। आज अब लोग फिर इन्फ्लुएंसर को गालियाँ देते हैं, वो चले गए शोरूम में। आजकल तो वही बढ़िया बढ़िया कंपनियां आ गई हैं, खूब स्टूडियो खुल गया है, जाओ वहाँ शूटिंग करो, 25-50 हज़ार रुपये दो, मर्सिडीज के साथ करवाना है, BMW के साथ करवाना है, फेरारी के साथ करवाना, जाओ। वो कर रहे हैं तो ठीक है। अब सौरव गांगुली बोल रहे हैं और विराट कोहली बोल रहे हैं, अच्छा तू 1 ही करोड़ रुपये कमाया बस,
ड्रीम 11 से अभी 5 करोड़ कमाएगा तू, वो सही है भाई। फिर इन्फ्लुएंसर को से भी दुनिया भर का बैन लगा रही है, 100% गलत है वो, ठीक है। पर तू कुछ तो साला बता रहे हैं यार, कुछ तो ABCD सिखा रहे हैं। सीखना आपको है, अगर आप सेटिस्फाइड हो तो फिर कोई क्या कर सकता है उसमें, आप अपनी मर्जी से जा रहे हो। वो तो कुछ तो ABCD सिखा रहे हैं, ऑप्शन को वो कैंडल का कुछ तो सिखा रहे हैं, ठीक है। ये क्या सिखा रहे हैं, 2-2 करोड़ 5-5 करोड़ रुपए, ऐसा तू 1 करोड़ रुपए ही कमाया, अभी देख 5 करोड़ आएगा। आप बताओ, गांव के किसी महिला को लेके चले आ रहे हैं, वो ऐड कर रही है, वो देखोगे तो बिल्कुल उसकी झुग्गी झोपड़ी थी, फिर का एक घर बन गया उसका, फिर उसके घर में गाड़ी आ गई। इस टाइप ऑफ मार्केटिंग होगा ड्रीम 11 से। गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। हमारे लोगों के लिए सेबी इंडियन स्टॉक मार्केट में तो काम करना बड़ा मुश्किल है भाई। ये तो चलो एडवाइजरी सेबी तो छोड़ दो, पर्सनल लेवल पे इतने कंप्लायंस है, तुम तो चला रहे हो अपनी दुकान, इतने कंप्लायंस हैं कि मतलब NSE का टिकट लेना इट्स मोस्ट डिफिकल्ट। कई ऐसे क्लाइंट्स हैं मेरे पर्ची जिनका कई 100 करोड़ का पोर्टफोलियो, लेकिन वो ब्रोकर के साथ ही कर भाई कौन टिकट लेने जाए, कौन इतनी कंप्लायंस झेलने जाएगा सेबी का, इतने रूल्स हैं। चलो लेट्स ऑन द टॉपिक फाइनेंशियल प्रेशर एंड ओवर कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस कब आता है, जब आप थोड़ा पैसा बना लेते हो ना, तब लगता है कि नहीं मैं भी हार्दिक पांड्या हो गया हूँ, अब तो मैं मुंबई इंडियन कैप्टन बन गया हैं। और फिर वो 2 लॉट से सीधे 15 लॉट पे जंप होते हो। तो कमाया तो अपने 2 लॉट से सर, लेकिन जब M2M जाएगा आपका 15 लॉट से जाएगा, वो दिखता नहीं है ना। फिर तो नंबर मोबाइल खोलोगे और कैलकुलेट करने लगोगे, 300 पॉइंट निफ्टी इंटू 1000 क्वांटिटी, 15 लाख रुपए हो गए, वो कैलकुलेशन करता है आदमी, ठीक है। सो पोजीशन साइजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। जो हम डिस्कशन करते हैं पोजीशन साइजिंग का, पता है आपको, पोजीशन साइजिंग का कोर्सेस हैं इंडिया में तो नहीं है, जिनके $1000 $1500 लोग चार्ज करते हैं सिर्फ पोजीशन साइजिंग सिखाने के लिए। कितने लॉट में करना है, कब करना है, क्या रेशियो होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। और जब आप उन कोर्सेज को ज्वाइन करोगे तो ऐसा लगेगा कि यार कि तो इससे बढ़िया भी इतना पढ़ लिया होता तो मैं IIT क्रैक कर गया होता। वो समझ में नहीं आएगा, इतने फार्मूले लगा देते हैं वो। मैंने तो बहुत एजुकेशन पे मैं आई होप सो 20 साल में 50 लाख रुपए में लगाया होंगे एजुकेशन। ऐसा कोई ट्रेनर नहीं है अब्रॉड का जिसको मैं जानता ना, बट आई लर्न ए लॉट, ठीक है। तो जो भी पैसा आप कमाओ कम से कम 10% अपने ऊपर खर्च जरूर करो फॉर द एजुकेशन पर्पज। एजुकेशन ही एक ऐसी चीज है, देखो ना, फ्लूक से पैसा कौन कमाता है। अगर टीम इंडिया वर्ल्ड कप एक मैच से अरबों रुपए चले गए इंडियन प्लेयर्स के, एक मैच से वर्ल्ड कप फाइनल अगर जीत गए होते, एक खिलाड़ी 100 करोड़ 50 करोड़ रुपए का मालिक हो गया होता। एक मैच हार गए, सब पैसा चला गया, ठीक है। और एक मैच जीत गए तो क्या प्रोसेस, तो 100 करोड़ रुपए सबके पास आ जाते। एक अनुमान बता रहा हूँ, ठीक है। किसी भी बिजनेस में, किसी भी धंधे में पैसा हमेशा प्रोसेस बनता है। सिर्फ 2 इंडस्ट्री ऐसी है जहां प्रोसेस तो वहां पे भी है, लेकिन कभी कभी जंबो जैक लग जाता है। एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और दूसरा स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, ठीक है। अब वो 10 मैच लगातार जीते, प्रोसेस फॉलो किए, सब कुछ फॉलो किए, 10 मैच लगातार जीते, 11वें मैच में हार गए। अगर वही 10 मैच हार गए होते, सपोज दैट कभी जीतते कभी हारते, कभी जीतते कभी हारते, लुढ़ते लुढ़ते जैसे 83 में फाइनल पहुंच गए, तो इसे फाइनल पहुंच जाते और वो फाइनल वाला मैच जीत जाते, ये जो पीछे जो हारे थे सब खत्म, फिर 100 करोड़ का आदमी हो जाता, फ्लूक से पैसा आ जाता। सिर्फ 2 इंडस्ट्री ऐसी है कि इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, एक स्पोर्ट्स, जहां कभी कभी फ्लूक से पैसा आ जाता है। अभी IPL बंद कर दो, जितने नखरे हैं कि ये प्लेयर्स के 30-30 साल लग जाते थे बेचारों को ना, एक मारुति कार खरीदने में खिलाड़ियों को। आज 22 साल का लड़का अभी 8 करोड़ की गाड़ी से चल रहा है, 10 करोड़ के फ्लैट में रह रहा है। अभी बंद कर दो IPL, देखो सब खत्म मामला। इसलिए सिर्फ 2 इंडस्ट्री के अलावा तीसरी ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं है जहां फ्लूक से पैसा बनता है। हर जगह प्रोसेस से पैसा बनता है। और ट्रेडिंग लाइन में भी वही चीज दिखाई जा रही है, यूट्यूब पे हर जगह दिखाई जा रही है कि फ्लूक से पैसा बनता है। आप 10,000 20,000 50,000 1 लाख लगा के करोड़ों पे कमा लोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। यहाँ भी पैसा प्रोसेस से बनेगा। अगर खुदा न खास्ता पैसा झटके से बन गया ट्रेडिंग से, वैसे 3 महीने में चला भी जाएगा, रुकेगा ही नहीं, क्योंकि ये जो है ना, ये वर्ड ये खत्म कर देता है। पोजीशन साइजिंग इतनी बड़ी हो जाती है आपकी ना, आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो। सो पोजीशन साइजिंग सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पैसा बनाने में, सबसे। अब मेरा अपना मानना है कि जैसे जैसे पैसा बनता जाए ना, पोजीशन साइजिंग को फोकस करना बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा पोजीशन साइजिंग पर आप फोकस करोगे उतना आप स्टेबलाइज रहोगे। और डोंट पुट योर ऑल मनी इन सिंगल स्टॉक। चाहे कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही हो, आपको लग रहा है कि ये भाग जाएगा, रुकेगा नहीं,
लेकिन फिर भी सारा पैसा एक स्टॉक में मत डालो। अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए है, कम से कम आपका 5 से 6 स्टॉक्स होने चाहिए। नहीं मिल रहा है स्टॉक, आप कैश में बैठो ना, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, धैर्य बनाकर। बट डोंट पुट योर ऑल मनी इन सिंगल। सो सारा प्रोसेस का गेम है स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना। चार्ट्स तो है ही है, बिना चार्ट से कुछ नहीं होगा। चार्ट में तमाम तरीके की मेथोडोलॉजी हैं, लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। सिंपल तरीके की मेथोडोलॉजी बाजार में खत्म हो गई है। जो 10,000, 20,000, 5,000 के कोर्सेज बेच रहे हैं वो सब कुछ नहीं काम करता बाजार में अब। यू हैव टू आइडेंटिफाई द यूनिक थिंग, है ना, वो उस पर फोकस करने की जरूरत है। अब उस पर थोड़ा डिस्कशन करते हैं। हाई इमोशनल स्ट्रेस, पर्सनल फैमिली इशू एंड सिग्निफिकेंट लाइफ इवेंट, डिस्ट्रक्शंस, मल्टीटास्किंग वर्क और अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल मीडिया एंड एंटरटेनमेंट डिस्ट्रक्शंस। ये एक चीज़ और मैं बताऊं कि ना, ये मैं ट्रेडर को हमेशा बोलता हूं कि ना, आप ये CNBC जी बिजनेस जो भी है ना, बिल्कुल आप मत ओपन करो। किसी को नहीं सलाह देता हूं खोलने के लिए। डोंट रीड फाइनेंशियल मीडिया, रीड ओनली न्यूज़। न्यूज़ मीन्स व्हाट, कि सुबह सुबह यार आपके पास मान लो रिलायंस है, कोई न्यूज़ आ गई, ठीक है, तो वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो आप ऐप डाउनलोड कर लो, उसमें आप पॉपअप्स आते रहते हैं। अगर आप दिन भर टीवी खोल के बैठे रहोगे ना, आप कभी पैसा नहीं बना सकते, नेवर। आपने सपोज दैट TCS लॉन्ग करने के लिए प्लानिंग किया हुआ, उधर से वो शॉर्ट बोल दिया, अब आपका माइंडसेट खराब हो गया। इसलिए देखना ही नहीं टीवी, आप ऐप डाउनलोड करो सिंपल तरीके से, और न्यूज़, कोई न्यूज़ आएगी पॉप से पॉपअप आ जाता है। भले 150 रुपये महीने लेता हो, ET नाउ का है, तमाम लोगों का है, उसको सब्सक्राइब करो। टीवी अगर आप CNBC जी बिजनेस लगा के बैठे हो, सर फाइनेंशियल मीडिया इज़ अ क्राइम। पता है आपको, पॉलिटिकल मीडिया से ज़्यादा क्राइम फाइनेंशियल मीडिया में है, ठीक है। ये गेम ही कुछ अलग है एक्चुअल में। जब आप अच्छी बुक्स 10-50 अच्छे वर्ल्ड क्लास के सेमिनार्स जो कि फ्री में अवेलेबल हैं, जब आप अटेंड करोगे, जो अपने माइंड सेट को ना उस मेच्योरिटी लेवल पे लेके जाओगे ना, तब समझ में आएगा कि जो रियल दुनिया वो बिल्कुल अलग है, जो वर्चुअल दुनिया बिल्कुल अलग है। जो आपको दिखाया जा रहा है एक्चुअल में वो है ही नहीं। किसी भी फील्ड में देख लो आप, आइदर इन पॉलिटिकल, इन फाइनेंशियल, जो चीज़ दिखती है वो चीज़ एक्चुअल में है ही नहीं। आप सुबह सुबह आ जाएंगे टीवी पे 20-20 स्टॉक्स लेकर के। अरे आपको, ये तो ऑडियंस को सोचो, उनका तो बिजनेस हो तो करेंगे भाई, वो तो अपना धंधा खोल रखे हैं, वो तो करेंगे ही। आपको सोचना है, उनकी उतनी अक्ल होती है, 2-4 लाख रुपए महीने की नौकरी कर रहे होते हैं वो, आप सोचने वाली बात है। पैसे की कमी है क्या मार्केट में? आप अगर कंसिस्टेंट 14%, 15% का भी रिटर्न निकाले हो साल का ना, कितना पैसा दिलवा दूंगा, आप मैनेज नहीं कर पाओगे। बट लोग नहीं मानते हैं। सुबह 7 बजे ही CNBC खुल जाएगा, जी बिजनेस खुल जाएगा, बैठ जाएंगे लोग, देखते रहेंगे, और जो एनालिस्ट आएंगे उनके लेकर के ट्रेड टिप्स लेते रहेंगे और करते रहेंगे, फिर नुकसान खाते रहेंगे। तो ये तो बिल्कुल ही पॉइजन है। अब पॉइजन है, अभी एडिक्शन हो जाता है आदमी का, एडिक्शन से दूर कैसे हो? तो ये सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए। पॉलिटिकल मीडिया को भी अवॉइड करना चाहिए, ये सब डिस्ट्रक्शंस हैं। दीज आर द TRP गेम। सारा गेम बदल गया है 10 सालों में, सारा गेम फॉलोअर्स का हो गया है, आप समझो बात को, ठीक है। रोहित शर्मा को कैप्टनशिप नहीं दी गई, और आप कोई भी रील उठा के देख लो, खाली रोहित शर्मा आ रहा है। हार्दिक पांड्या को गालियां दे रहे हैं लोग, ठीक है। इतना प्रेशर बन जाएगा नीता अंबानी को, देखना 2 मैच बाद उसे हटाना ही पड़ेगा। इसी तरीके से जितने भी टीवी एंकर हैं, सुबह 6 शाम को 6 बजे डिस्कशन करते हैं, दे आर क्रिएटिंग अ नॉनसेंस टू इनहेंस द फॉलोअर्स। उनको अपने फॉलोअर्स बढ़ाने हैं, एंकर को फॉलोअर्स बढ़ाएंगे, उनके ज़्यादा फॉलोअर्स होंगे, दूसरे टीवी में जाएंगे, 5 लाख रुपये महीना कमा रहे हो तो वहाँ पे उनको 10 लाख रुपये महीना मिलेगा। जो प्रवक्ता करके बकवास किए जा रहा है, लड़ाई करा, झगड़ा करा, उसको राज्यसभा टिकट चाहिए, वो अपने अपने पार्टी के चीफ के गुड फेथ में आना चाहता है, उसको अलग पोजीशन चाहिए। जनता बैठ कर मूर्ख होकर के देख रही है, आपस में लड़ भी रहे हैं दोनों लोग। सो ये सब चीज़ों से बिल्कुल आप अलग हटो, इससे कोई फायदा नहीं है। इट विल डिस्ट्रैक्ट योर माइंड। ट्रेडिंग के लिए तो बिल्कुल ही मतलब ना, इन सब चीज़ों से बिल्कुल कट जाना है, बिल्कुल ही कट जाना है। आप चुपचाप ऐप डाउनलोड करो, जो भी न्यूज़ रहेगी सब ट्विटर पे आ जाती है, सारी न्यूज़ जो है ऐप पे आ जाती है। न्यूज़ देखना है 7 बजे से 7:30 बजे को सब कुछ आ जाता है कि क्या क्या स्टॉक्स इन न्यूज़ कौन करना। आपके पास अगर स्टॉक्स पड़े हुए हैं जो न्यूज़ में है, तब तो उस पर फोकस करो, काटना कि नहीं काटना, नहीं पड़े हुए हैं तो छोड़ दो, अपना चार्ट्स खोलो, अपना ट्रेड करो, कोई मतलब नहीं है किसी। और ड्यूरिंग द मार्केट जब न्यूज़ आती है किसी पर्टिकुलर स्टॉक में, तो आपको पता नहीं चलेगा। जब आपका स्टॉक लोग खा लेगा, या आप बैठे रहोगे, इंतजार करते रहोगे, 3% गिर गया, 4% गिर गया, क्या करे, न्यूज़ ढूंढ रहे हो, गूगल मार रहे हो, मान लो कोई न्यूज़ आ रही है, शाम को 6 बजे न्यूज़ आएगी कि इस स्टॉक में क्या हुआ, ठीक है। तो जो फाइनेंशियल मीडिया का जो रोल है ना, वो पूरे वर्ल्ड वाइड है, इंडिया में नहीं, वर्ल्ड वाइड, पूरे वर्ल्ड वाइड है ये। फाइनेंशियल मीडिया इज ए क्राइम एक्चुअली। जब आप स्टडी करोगे, जब आप टाइम लगाओगे अपने ऊपर, जब आप
अच्छी बुक्स पढ़ोगे, अच्छे राइटर्स की किताबें पढ़ोगे, तब आप चीज़ों को समझ में आएगा आपको कि रियल दुनिया क्या है और ये क्या है। तो जो बड़े बड़े ये जो आ जाता है सुबह सुबह की गोल्डमैन सैक ने बोला रिलायंस 3200 हैं, HCL टेक में सेल कॉल आ गई, ये सब गेम होता है। दीज ऑल आर द गेम। तो ये जब बाजार में तेजी रहती है ना, तो सब इसी तरीके से बातें बोलते रहते हैं और सब गेम होता है। सब स्टॉक्स, अगर वो कोई बाइंग कर रहा है तो समझ लो माल अपना चेप रहा है, अगर सेलिंग की रिकमेंडेशन दे रहा है समझ लो नीचे के लेवल ले आना चाहता है, वहाँ पे खरीदना चाह रहा है। यू हैव टू फोकस योर स्टडी। आप अपने फंडामेंटल देखो, EPS क्या है, ग्रोथ क्या है, सेल्स वॉल्यूम क्या है, ठीक है, पी क्या है, ये सब चीज आप देखो, चार्ट्स देखो, ट्रेड करो। एडिक्वेट रिसर्च, मार्केट कैशन एंड क्लियरिंग द ट्रेडिंग स्ट्रेटजी फॉर द डे। कायदे से क्या करना चाहिए आपको कि डेली ना जो भी ट्रेड हो, डेली बेसिस पे स्टॉक्स को निकालना है, ठीक है। एक तो मैं कुछ मेथड आपको बता रहा हूं, जो चीज दिमाग मेरे आ रहा है ना। एक तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, देखो 2-3 मेथड मैं बता रहा हूं, ठीक है। सबसे कि 10 लाख से ज्यादा वॉल्यूम हो एफ&ओ में, फ्यूचर में, स्टॉक्स में कम से कम, अगर आप ट्रेडर हो तो, ठीक है। 10 लाख से ज्यादा वॉल्यूम होना चाहिए प्रतिदिन। दूसरा क्या हो, 200 DMA REMA, इसके ऊपर ट्रेड करते रहना चाहिए स्टॉक्स, ठीक है। तीसरा क्या हो, ग्रोथ स्टॉक्स हो। ग्रोथ स्टॉक्स मीन्स जिसको सभी जानते हैं, स्टॉक में TCS हो गया, हिंदुस्तान लीवर हो गया, HDFC बैंक हो गया, कोटक बैंक हो गया, हैं, नेस्ले हो गया, ब्रिटानिया हो गया, टॉप क्लास के जो स्टॉक्स हैं, उन स्टॉक्स को आप रखो अपने पोर्टफोलियो में। इस 2-3 चीजों को आप ध्यान में रखो, ठीक है। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लो कि कितने स्टॉक या फंडों में है। लगभग 200 स्टॉक हैं। 200 स्टॉक्स में कितने स्टॉक्स ऐसे हैं जो 200 DMA के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। और खास तौर से बाजार अगर 10% गिर जाए, सपोज दैट, जैसे अभी बाजार 22,500 700 से 21,800 आ गई, उस कंडीशन में कौन ऐसे स्टॉक्स हैं जो 200 DMA 800 पॉइंट निफ्टी गिरने के बाद भी नहीं तोड़े हैं? इट मीन्स दैट स्टॉक इज हाईली बुलिश। सो गो एंड चेक देयर फंडामेंटल्स कि यार ये क्यों नहीं गिरे, इतनी बाजार आ गई फिर भी 200 DMA क्यों नहीं तोड़ा, ठीक है। तो यार पता चला फंडामेंटल उसका बहुत अच्छा है, लगातार EPS उसका इंक्रीज कर रहा, सेल्स इंक्रीज कर रहा, प्रॉफिट इंक्रीज कर रहा, उन स्टॉक्स को सबसे पहले निकालो। अब देखो जैसे 21,800 से निफ्टी 22,500 हुई, सबसे पहले ये स्टॉक भागेगा, सबसे पहले ये स्टॉक भागेगा जो 800 पॉइंट निफ्टी गिरने के बाद भी 200 DMA नहीं तोड़ा स्टॉक। जैसे बाजार रिकवर होगी सबसे पहले स्टॉक्स भागेंगे। सो सबसे आइडियल तरीका है कि 200 DMA EMA जितने भी स्टॉक्स है ना, उसको आइडेंटिफाई करके, जिसमें 10 लाख से कम मिनिमम वॉल्यूम होना चाहिए फ्यूचर्स में, जिससे ना उस स्टॉक्स में ना 1 लाख 2 लाख वाले हम काम करो, कोई 10-20 हजार शेयर बेचा ना तो फट से 50 रुपए नीचे गिर जाएगा, आपका स्टॉप लॉस खा के फिर ऊपर चला जाएगा वो। तो डोंट हैव टू ट्रेड बिलो 10 लाख वॉल्यूम। 1 मिलियन से कम वॉल्यूम हो तो आपको ट्रेड नहीं करना उन स्टॉक्स में। फाइनेंशियल प्रेशर, ट्रेडिंग विद मनी दैट यू कांट अफोर्ड टू लूज, अर्जेंट फाइनेंशियल नीड्स elsewhere, ओवर कॉन्फिडेंस, मैंने डिस्कशन किया, लैक ऑफ फोकस, मैंने इसका डिस्कशन भी किया है, PPT आप लोगों को मुकेश शेयर कर देगा। कभी भी ना हमेशा ट्रेडिंग ना उतनी पैसे करो जितना लॉस आप एफर्ट्स कर सकते हो। अब इंटायर कैपिटल को कभी भी ट्रेडिंग मार्केट में मत लगाओ, कभी भी, नेवर, ठीक है। आप उन्हीं पैसों को लगाओ जिससे को आप लॉस कर लो तो कोई फर्क आपके फाइनेंशियल पे ना पड़े। और अगर आपने बहुत पैसा बना लिया, बहुत, मैं इस साइकोलॉजिकली जितनी चीजें भी आ रही PPT का वही मैं बताता जा रहा हूँ, जो अपने एक्सपीरियंस से और जो लोगों को मैंने देखा है, बहुत पैसा आपने ट्रेडिंग कमा लिया ना, तो डोंट इंक्रीज योर लाइफ स्टाइल सडन, है ना। अगर आपने सपोज दैट 1 करोड़ रुपए से आप काम शुरू किया, 3 साल में 10 करोड़ रुपए बना लिया आपने, है ना, तो अपनी लाइफ स्टाइल को ना इतना मेंटेन करो कि आपको पैसा लगे ना तो कोई बोल ना सके कि यार इसको पैसा लग गया है, ठीक है ना। ये सडन अगर आप लाइफ स्टाइल चेंज करोगे ना, जब वहां से गिरोगे ना, फिर उठना बहुत मुश्किल है। तो मनी मैनेजमेंट का रूल ना सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केट में। का पैसा कमाने के बाद पैसा रिटेन करना, और रिटेन करने के बाद सपोज दैट आपको लॉसेस लग गए, जो कि नेचुरल लॉसेस सबको लगते हैं, आपको भी लगेंगे, आगे के भी लगेंगे, लेकिन इतना लॉस लगे, इतने पे आप रुक जाओ कि आपकी लाइफ स्टाइल पे कोई चेंज ना आए, और इतना आपके पास पैसा होना चाहिए कि दोबारा स्टैंड आप हो सको, और 2-4 महीने ट्रेडिंग बंद करनी हो तो बंद भी कर सको, आपके लाइफ स्टाइल पे कोई फर्क नहीं पड़े, तब तो जाकर के आप बड़ा पैसा बनाओगे बाजार से। नहीं ये चूहा बिल्ली का खेल लगा रहेगा, 20 साल बिता दोगे। तमाम ऐसे ऑपरेटर से देखता हूं, अरे सर वो फोन आया है ना, 90s ऑपरेटर है, अच्छा
वो तभी प्रिया स्कूटर से साला 90 में चलता था, आज भी प्रिया स्कूटर से ही चल रहा है ऑपरेटर, तभी पैसा नहीं बनता। बहुत लोगों से मैंने मिला, ये यहाँ से टिप्स आती है, वहाँ से टिप्स आती है, सर मैं हर्षद मेहता के टाइम पे हूँ। भाई हर्षद मेहता के टाइम से तू साला HDFC बैंक ही ले लिया होता ना 5 लाख रुपए का, तो आज GK में तेरा मकान होता, खाली एक ही शेयर ले लिया होता। तो 90 से टिप्स पे काम कर रहा है, मैं इस ऑपरेटर जानता हूँ, मैं उस ऑपरेटर को जानता हूँ, तब भी तू जो हालत तेरी 90 में थी वही हालत 30 साल बाद। तो ये सब यहाँ सब कुछ चीज़ों से पैसा नहीं बनता, जिसको जो रियल पैसा बनाता है ना वो कभी मार्केट में रिवील नहीं करता है कभी भी। और ट्रेडिंग इज अ कैपिटल जनरेशन बिजनेस, इट्स नॉट वेल्थ क्रिएशन बिजनेस। वेल्थ क्रिएशन बिजनेस इज ओनली इन्वेस्टिंग। ये ट्रू है, मैं सत्य बता रहा हूँ, कोई आपको बताएगा नहीं। वेल्थ इन्वेस्टिंग इज वेल्थ क्रिएशन इज ए इन्वेस्टिंग, कैपिटल क्रिएशन इज ए ट्रेडिंग। अगर आपके पास 1 मिलियन $1.5 मिलियन हो गया, स्टॉप द ट्रेडिंग, गो फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, कीप 10-20% टू जनरेट द गुड अल्फा, गुड रिटर्न के लिए आप 10-15% अपने कैपिटल को रखो। बाकी जब कुछ पैसे कैश रखो कि जब 15% 20% गिरती है तो वो अपॉर्चुनिटी को कैप्चर करें, तब जाके के 50 करोड़ 100 करोड़ आपका बनेगा। और दूसरा मॉडल क्या है पैसा बनाने का, फिर यू क्रिएट द वर्ल्ड क्लास एल्गो ट्रेडिंग फर्म एंड अपॉइंट द हाई क्लास ट्रेडर्स हैं, पुट द ह्यूज मनी and generate 2% 3% return and you make 1 crore 2 crore 3 crore rupees per month। एक वो मेथड है, वो मेथड तो अपने से परे है। तो फिर यही एक मेथड बचा। इस मेथड से पैसा बनाने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप ट्रेंड फॉलोइंग के काम करो, लीव ऑप्शंस, थ्रो ऑप्शंस, कुछ कभी नहीं पैसा बनेगा सर। अगर कोई बोलता है कंटिन्यू, मैं बोल रहा हूँ कंटिन्यूस पैसा बनाओ 5 साल आप ऑप्शन से, कोई 1 साल ऐसा आएगा सब खत्म कर देगा, सब खत्म कर देगा, 1 to all। ये चीज नहीं समझ में आती लोगों को, बिल्कुल नहीं। सर फ्यूचर में क्या है, फ्यूचर में स्टॉक 10% सर्किट पे तो आपको निकलने का मौका देगा ना। और आप इतने बैड लकी हो कि 250 स्टॉक्स में शायद ही आप फंस जाओ उसमें जिसमें 10% वाला सर्किट लग रहा है, नीचे कोई न्यूज आ गई, फिर भी 10% पे आपको देगा टाइम निकलने का। सर 1 करोड़ रुपए में 10 लाख रुपए तो लगेंगे आपको, सपोज दैट। ऑप्शन तो 1 करोड़ रुपए साला एक दिन में खत्म हो सकता है। और मैं नए लोगों को देख रहा हूँ कि सो मेनी फेसबुक पे काम कर रहे हैं, बड़े बड़े MNC में काम कर रहे हैं, 1 करोड़ का पैकेज 1.5 करोड़, दे लेफ्ट द जॉब, दे आर डूइंग अ ट्रेडिंग, आई एम डूइंग नथिंग, ओनली ऑप्शंस, कोई फायदा नहीं। एक इवेंट ऐसा आएगा सारा पैसा लेके जाएगा, सब खत्म करता है ऑप्शंस में। सब 1 to all। बोल तो रहा हूँ, सपोज दैट आपका 1 करोड़ रुपए है, सी आपके पास पूरा 1 करोड़ का स्टॉक है, सपोज दैट आप उसमें बैड न्यूज आ गई, सर 10% तो 10% में तो खुलेगा ना सर, 10 लाख रुपए का नुकसान होगा ना। वो 1 करोड़ रुपए ऑप्शन का एक ट्रेड 1 घंटे में आपको खत्म कर देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। बनाने का छोड़ो सर, पहले बचाने का सोचो। जब मैंने पहले बोला जब पिच पे आप टिके रहोगे ना तो रन तो नो वाइट से बन जाएगा, आप समझो बात को। पहले बचाना सीखो, बचाना सीख जाओगे तो पैसा तो अपने आप बन जाएगा। इट मीन्स यू आर फॉलोइंग द प्रोसेस, ठीक है। कोई 20% कमा रहा है साल का, कोई 30% कमा रहा है, कोई 50%, कोई 100%, लेकिन अल्टीमेटली कमा रहे हो ना, लूज तो नहीं हो रहा है। सो फोकस जो है वो पैसा बनाने का होना चाहिए, है ना। ये फैंसी ऑप्शंस में जा करके वो नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। ऑप्शन इज अ हेजिंग टूल, दिस इज नॉट फॉर द डिस्क्रिशनरी ट्रेडर। डिस्क्रिशनरी ट्रेडर के बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन में सिर्फ 2 तरीके के लोग पैसा बना रहे हैं, द ट्रेडर हु आर डूइंग आर्बिट्राज टाइप ऑफ सिस्टम, और द ट्रेडर हु आर ट्रेडिंग फर्म्स इन गुड़गांव एंड बेंगलोर एंड मुंबई, जिनके पास 1000 2000 5000 रुपए है, हाई क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर लगा रखे हैं, उनके पास आर्किटेक्ट हाई क्लास का है, करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ का ATM बन रखे हैं, वो पैसा बना रहे हैं। हमारा वो पैसा आ कहां से रहा है, हमारे आज जैसे आपके 2 लाख 5 लाख वाले ऑप्शन ट्रेडर उनको दे रहे हैं कमा कर। ये है तरीका। core trading approaches to enhance the trading, technical analysis, fundamental, quantitative, sentiment analysis, risk management and continuous learning.